के कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ, 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 ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के फूल कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, 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 सरसों से भरी खलियान मेरा, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असनत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ, 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 Thank you for listening. तुम्हें सक्सेस चाहिए ना? एक रास्ता खुला हुआ है, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेट कर पाओगे, सक्सेस के लिए तुम्हारा जो चाहिए, जो चीज में तुम्हारा सक्सेस चाहिए, इट इज गारंटेड यू विल गेट। एक चीज याद रखो, पुराना जमाने से हम लोगों को कंसंट्रेशन कराना ही सिखाया जाता था, वेरियस वे। एक चीज सोचो, हम लोग अगर बताएगा ना कंसंट्रेट करो कंसंट्रेट करो, हम लोग कोई नहीं करता था। हम लोग को इसीलिए बोला है, हिंदू लोग को सिखाया गया है भगवान को प्रणाम करो, पूजा करो। मुस्लिम लोग को सिखाया गया है प्रे करना है, जीसस लोग को बोला है प्रे करना है। भगवान का नाम पे, जीसस का नाम पे, अल्लाह का नाम पे अगर हम लोगों को ये डराया नहीं जाएगा, धर्म का नाम पे अगर डराया नहीं जाएगा, तो हम लोग कोई करेगा ही नहीं कंसंट्रेशन, सो सक्सेस अधूरा हो जाएगा। इसीलिए एक चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं खुद रियलाइज किया है, खुद मैं करके देखा है। कंसंट्रेशन, तड़पते रहो, मुझे कंसंट्रेट करना ही है, मुझे कंसंट्रेट करना ही है। अगर तुम कर दिया ना, गारंटेड तुम सक्सेस मिलेगा। जो चीज में तुम्हारा सक्सेस चाहिए, यस यू विल गेट।
গান গেয়েছি দোলা মোরা ভোরের ফুলেছি দোলা বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি দোলা হায় মাঝে বলো ছাড়া ছাড়ি নেমে কি কোথায় আমার দেখার জন্যে কোমল My house is rich, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. Thank you. All the people who are watching this video currently. My name is Tushmita Gupta and I'm one of the students being taught by Sandeep sir. And today I'm here to present you all a small creation of mine, that is a poem being written by me on this prevailing time of coronavirus. So here it goes. Beholding the ghost. Runnings of tears and screams as I hear under the balcony and into the houses, trying to see what is the fear, but only to be seen is the quietness around. Still I move my gaze around, trying to find something must be there. What is the fear all about if there is nothing to be afraid? Then I hear my name being called, as if the dread has come to me, searching. This is only what they say, to fade in the words or live with the root. And with those words they fall down static, with the uncanny silence and the hidden words. Everything happened like a switch of wind, making me unaware and unwind. With everything what happened. Finding no one or nothing to tell me, I sit on the ground thinking the things behind. What did it come so fast and swipe out the life? And will it be there to welcome my life too? Knocking heavily on my door, but I fear if it's already here. Maybe it is a ghost or demon who came to take me just like it did to others. Breaking my breath into smaller, I open the door for the intruder, but what I see isn't what I thought. But nothing could I see as I fainted on the spot. The second I open my eyes, I find me in a room with nothing but walls. Then came some people looking for me with masks and gloves glued to them. Seeing them, I recede back a little, but better that I clear what was the fear. They say, now it's only you living among them. Fainting, we found you living among the dead. What's the matter? Just clear my doubts. How did they die in such an uncentered mess? They only show me something jotted down into some papers. It's an infection we are dealing, not the ghost or demon of any realms. It's a virus that is severing the life. Unknowingly, it attacks from behind. And now I have also become one of its victims as it lurks inside me for my death and its victory. Thank you. This is the poem I have written. It's a poem I made on the basis of my imagination, but it is not meant to provide any negativity to any people. It's just a poem and it's just my imagination that I put into the paper. But if it hurts you, pardon me. Thank you.
इंसानियत। सिर्फ अपनी सांसें सबको प्यारी हो गई, इंसानियत के मरने की पूरी तैयारी हो गई। क्या हासिल करोगे जीत कर दूसरों से, जब अपनों से ही हिम्मत करारी हो गई। ताज़ी हवा परेशान करती है जिस्म को, सब कुछ जीवन में अब तो चार दीवारी हो गई। मौत ही असल हकीकत है जीवन की, क्यों सबको इतनी जानकारी हो गई। माँ बाप भाई बहन सब मतलब के रिश्ते हैं, शायद जानवरों सी नस्ल हमारी हो गई। मज़ा आता नहीं अब तो किसी भी बात पर, गुम कहीं वो बच्चों की किलकारी हो गई। मंदिर मस्जिद क्या आम क्या खास, सब कुछ बेदर्द दौलत की दीवानी दुनिया सारी हो गई। ज़्यादा कमाने की अंधी हवस में प्यारों, खुद की कीमती सांसें ही हम पर भारी हो गई। हर एक सांस को जन्म देने वाली देवी, इज्जत को मोहताज बेचारी नारी हो गई। इश्क करना इश्क फैलाना आदत है मेरी, क्यों तुझको आनीरज ये अजब बीमारी हो गई। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी हूँ मस्त। যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খোলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাঁটা তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে, যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা, আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দোয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দোয়ার দেয় ঘরে, তবে বজরা নলে তবে বজরা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে, যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো
একলা চলো রে যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। सा गा मा 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 गा मा नी 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 धा नी सा नी धा मा गा सा मा 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 सा गा मा 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 गा मा नी 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 धा नी सा नी धा मा गा सा मा 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 जय
आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना है रिवर का पानी का तरह। कैसे है वो? रेगुलर तुम्हें पढ़ना ही है। जस्ट मेक इट ए हैबिट। रेगुलर जैसे हमको खाना है, सोना है, सो मुझे पढ़ना ही है। कमती हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। जस्ट मेक इट ए हैबिट। ऐसा कभी नहीं करना है कि आज मैं बहुत पढ़ लिया, 13 घंटा 14 आवर्स 13 आवर्स पढ़ लिया, कल रेस्ट है। डोंट डू दिस। तुम्हें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आज ज्यादा पढ़ लिया मतलब कल पढ़ाई करने नहीं सक रहा है। डोंट डू दिस। एटलीस्ट जितना आज पढ़ेगा तो डोंट बी सैचुरेटेड। जितना तुम पढ़ सकते हैं पढ़ो, फिर कल पढ़ना है वो बात भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। और एक बात है, कैसे पढ़ता है हम लोग इन जनरल, कैसे पढ़ता है? देखो मैं खुद भी ये गलती करता था। इन जनरल स्टूडेंट ये गलती करेगा ही करेगा। क्या करते हैं बोलो तो? हम लोग जब पढ़ता है, कोई टॉपिक को पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ क्या कर रहा है, मैं उसमें याद किया है, टॉपिक को पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसका बाद याद किया है, उसको लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे मेरा टीचर बोला है पढ़ो और लिखो। गैप कहां पर हो जाता है मालूम? गैप वो जगह में हो जाता है कि जब तुम पढ़ोगे, याद करोगे, तुम जो लिखना शुरू करोगे ना, देखो आधा लिखने के बाद याद नहीं आ रहा है। क्या करता है तब क्या करता है तुम लोग कि जो आधा पार्ट जो याद नहीं है उसको देख देख के लिख लेते हैं। डोंट डू दिस। अगर ऐसा करोगे इट विल बी वेरी मच हार्मफुल फॉर यू। सो हाउ टू स्टडी? देखो हम लोग के घर में, सबका घर में एंड्रॉइड फोन तो रहते ही है, सबका घर में है ऑलमोस्ट। हम लोग पढ़ाई करेगा, याद करेगा, अच्छा से हर टॉपिक को माइंड में लेगा। उसका बाद क्या करोगे, उसको वॉइस रिकॉर्डर ऐप को ऑन करो। ऑन करने के बाद उसको रिकॉर्डिंग करो। जो तुम पढ़ा है ना उसको वॉइस रिकॉर्डिंग करो। उसका बाद वही वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनो, देखो क्या होता है, क्या बोल रहा है तुम, मिलाओ। तुम्हारा जो किताब है ना वो किताब में मिलाओ। जो जो टॉपिक तुम बोल रहे हो वो सुनो। देखो सारे टॉपिक उसमें है, तो कुछ ना कुछ टॉपिक मिस होगा, कोई बात नहीं है, फिर एक बार याद कर लो, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करो। इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो क्या करोगे, अगर तुम ऐसे करके करते रहोगे, जब देखिए एक बार देखोगे ऐसा टाइम आएगा कि जिस समय तुम्हारा वॉइस रिकॉर्डिंग परफेक्ट हुआ है और कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, देन गो फॉर राइटिंग, नॉट बिफोर दैट। अगर तुम पहले ही उसको करने जाओगे, लिखने जाएगा, पढ़ने के बाद ही तुम लिखने जाओगे, इट विल बी वेरी मच हार्मफुल फॉर यू। सो एग्जाम में क्या होता है, वही हैबिट रह जाएगा। एग्जाम में क्या होगा, आधा लिखेगा, भूल गया, तब तो और किताब अलाउ नहीं है। क्या करोगे तब? इसलिए ऑटोमेटिकली तुम लोग को जो करना है, पढ़ने का समय तुम्हें वॉइस रिकॉर्डिंग करना है। वॉइस रिकॉर्डिंग करो, सुनो, फिर पढ़ो। इस ढंग से पढ़ते रहो, ठीक है ना? थैंक्स फॉर लिसनिंग।
एक चीज मुझे बता पाओगे, तुम्हारा लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन है? मम्मी, पापा, तुम्हारा टीचर, कोई अच्छा कोट्स, या फिर कोई रिनाउंड मोटिवेटर? सोच रहा है इसका अंदर तुम्हारा आंसर है, एक्चुअली नहीं, इसका अंदर तुम्हारा आंसर नहीं है। मैं गारंटी देके बोल सकता है, हर कोई मोटिवेशन का असर होता है 2 डेज, ओनली 2 डेज। आज तुमको कुछ अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखा है, कोई बढ़िया वाला थॉट्स पढ़ा है, पापा तुमको आज मोटिवेट किया है, या मम्मी तुमको अच्छा कुछ मोटिवेशन किया है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ, हर कोई मोटिवेशन का असर होता है ओनली 2 डेज। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है तब? तो हु विल बी योर बेस्ट मोटिवेटर? यू, ओनली यू। You only are the best motivator of yourself. तो मोटिवेट कैसे करोगे? सिंपल बात है, एक चीज सोच के देखो, तुम अपने आप को इन फ्यूचर में कौन सा जाएगा में देखना चाहते हो? क्वेश्चन योरसेल्फ, इन फ्यूचर में कौन सा जाएगा में तुम अपने आप को देखना चाहते हो? सोच रहा है ना? कोई हाईफाई जाएगा या फिर ऑर्डिनरी, या फिर बहुत खराब एक पोजीशन है, देखना चाहते हो? डेफिनेटली तुम्हारे माइंड में देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, नहीं, हम अपने आप को एक अच्छा जगह में देखना चाहते हैं, राइट ना? सो तुम अगर अपने आप को वही अच्छा वाला जगह पे, अच्छा वाला पोजीशन में देखना चाहते हो, तो स्टडी हार्ड, मेहनत करो। एंड अगेन व्हाट आई हैव टोल्ड एंड आई एम टेलिंग, हर कोई पल में मैं बोलते रहता है, अगेन वही है, कंसंट्रेट करते रहो, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा बस। जब भी तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, एक चीज सोचो, तुम अपने आप को कौन सा जगह में देखना चाहते हो इन फ्यूचर में, क्योंकि जब ये टाइम ओवर हो जाता है तब और डिपेंड करके कोई फायदा नहीं होता है। सो एक चीज सोच के देखो, अगर अपने आप को फ्यूचर में, इन फ्यूचर में अगर अपने आप को बहुत हाई फाई पोजीशन में देखना चाहते हो, मेहनत करते रहो, राइट? ये टाइम चला जाने से और टाइम घूम के नहीं मिलेगा, तो डिपेंड करके भी फायदा नहीं है। सो एक ही रास्ता अपने आप को हाई फाई जगह में देखने के लिए, क्या है वो? मेहनत। আগুনেরও মোহনায়, আগুনেরও মোহনায়, মন মাতানো মোহনায়
হৃদয়ের ওই বাগিচায় নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ভাগের মোহনায় মন মাতানো মোহনায় রঙিনী বিহুর সত্য আকাশে নিয়ে যায় ভাগের মোহনায় ভাগের মোহনায় মন মাতানো মোহনায় রঙিনী বিহুর সত্য আকাশে নিয়ে যায় ভাগের মোহনায় ভাগের মোহনায় ভাগের মোহনায় मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे एक दूजे का साथ कभी न छोड़ेंगे अपना तो सदियों जन्मों का नाता है जान से जान को कौन जुदा कर पाता है तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम हो नहीं कोई किनारा सनम प्यार बहुत करते हैं तुमसे इश्क है ये हमारा सनम हो इश्क है ये हमारा सनम আছো তুমি আমার গানের পারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে আমার সুর গলে পায় চরণ আমি পাইনি তোমারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে বাতাস বহে মোরে মোরে আর বেঁধে রেখো না তোরে বাতাস বহে মোরে মোরে আর বেঁধে রেখো না তোরে এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি আনন্দময় নীরব রাতে নিবিড় আঁধারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গান